Ignited Minds Tutorials is bridging the gap between students and quality education with its enlightening series of video lectures on the topic of mechanical properties of fluids, physics for IIT/CBSE Class 11/Maharashtra State Board Class 12. Fluid mechanics, a fundamental branch of physics, studies the behavior of fluids under different conditions, and understanding its mechanical properties is crucial. These video lectures simplify complex concepts with detailed explanations, making them accessible to students of all levels. By covering topics such as pressure, viscosity, surface tension, buoyancy, and fluid dynamics, students gain a holistic understanding of fluid mechanics. The tutorials cater to the specific requirements of IIT aspirants, CBSE Class 11 students, and Maharashtra State Board Class 12 students. The comprehensive approach of these lectures ensures that students thoroughly comprehend the subject matter, strengthen their analytical skills, and prepare effectively for their exams. The videos not only cover theoretical explanations, but also provide practical examples and problem-solving techniques. By presenting real-life applications of fluid mechanics, students develop a deeper appreciation for the subject and its relevance in various fields. Ignited Minds Tutorials' commitment to delivering quality education is evident through their systematic and knowledge-oriented approach. With their series of videos on the mechanical properties of fluids, students receive a valuable educational resource that empowers them to excel in their academic pursuits and ignite their minds for a brighter future. Alright, so people, we were doing mechanical properties of fluids, and mechanical properties of fluids, we have this question out here, and we will see how to do this. So एक ऐसा सवाल है जो पहले आ चुका है. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 1 millimeter each falling down with a terminal velocity. So there are basically, so let's say let radius of each drop, smaller drop, ठीक है, 8 rain drops of radius falling down with a terminal velocity. It is a smaller drop, b r, small r, ठीक है, okay, with a terminal velocity given here is 5 centimeter per second. Coalescence means that they are basically combining to form a bigger drop, ठीक है. So let radius of the bigger drop be r. Okay, now obviously 8 small raindrops are combined to form a bigger drop. So volume of the bigger drop, we can say that volume of the bigger drop, this is going to be equal to 8 into volume of one smaller drop. Okay, so volume of the bigger drop, that is going to be how much? 4 by 3 pi r cube. This is going to be 8 into 4 by 3 pi r cube. Okay, so let's do this here. So here what happens is 4 by 3 gets cancelled with 4 by 3, pi gets cancelled with pi. So here we have r cube is equal to 8 r cube. Taking cube root on both sides, of both sides, we have here r is equal to 2r. Okay, so r will be equal to 2r. Now find the terminal velocity of the bigger drop. Now we have seen in the previous lectures about the calculation of terminal velocity. So terminal velocity is equal to 2 by 9, that will be r square sigma minus rho into g upon coefficient of viscosity. Okay, okay, so now let's say smaller drops. For smaller drops, terminal velocity, let's say we have here 2 by 9 r square
rho minus sigma into g upon coefficient of viscosity. And let's say for bigger drop, what will be the terminal velocity? Let's say we have a capital V, here we are taking small v, and this will be equal to 2 by 9 the capital R ka square, and then we have coefficient of viscosity, density difference upon coefficient of viscosity into g. So if we happen to do a capital V by small v, this will be equal to 2 by 9 R square sigma minus rho g upon coefficient of viscosity upon 2 by 9 R square sigma minus rho g upon coefficient of viscosity. This gets cancelled, g and g gets cancelled, this also gets cancelled. So here we have capital V upon small v is equal to R square by R square, small r square. So we have capital V is equal to capital R square upon small r square into small v. Okay. So we already have established, actually we don't even need this, 1 millimeter information. This information, that small r, here we have small r is equal to 1 millimeter. It's actually not required because we have already established r is equal to 2r. So both will get cancelled. So here we have v is equal to 2r and its square upon r square into v. So that's going to be 4r square upon r square into v. These two r squares get cancelled. So 4 into v, that's how much the velocity is given as 5 centimeter per second. This is going to be how much? 20 centimeter per second. So the bigger drop will have a velocity of 20 centimeter per second. That's how we are going to do this. Okay, let's switch on to the next one, people. Show that if n equal raindrops falling through air with equal steady velocity. Now what do we exactly mean by steady velocity? It means nothing but terminal velocity. Please decode what is given first. Of 10 centimeter per second, again a very much similar problem. It's just here the facts and figures are not given, it's just n. So again we can say that volume, so let's say let r be the radius of the smaller drop. Let r be the radius of the smaller drop and capital R be the radius of the bigger drop. Capital R be the radius of the bigger drop. So volume of the bigger drop is equal to, if n equal raindrops falling through air, okay, the resultant drop attains a new terminal velocity with equal steady velocity. Coalescence means again combine. So this will be equal to volume of the bigger drop is equal to volume. So here it will be n into volume of a smaller drop. So here we have how much? 4 by 3 pi r cube is equal to n into 4 by 3 pi r cube of a smaller drop. Okay, so 4 by 3 gets cancelled with 4 by 3, pi or pi gets cancelled. So r cube is equal to n r cube. So taking cube roots on both sides, taking cube roots on both sides, we have r is equal to n raised to 1 by 3 r. So this will be the radius. R is equal to n raised to 1 by 3 r. Okay, the resultant drop. Okay, now we will talk about again the same formula here. Okay, so velocity, terminal velocity of bigger drop. This will be how much? This will be equal to 2 by 9 again, 2 by 9 r square density difference into g upon coefficient of viscosity, and smaller drop 2 by 9 r square density difference
into G upon coefficient of viscosity. So if we do a capital V upon small v, it will be 2 by 9 R square density difference to G upon coefficient of viscosity, 2 by 9 R square density difference into G upon coefficient of viscosity. All of these get cancelled along with coefficient of viscosity. So we have V by V is equal to R square by R square. So V is equal to, capital V is equal to V square by R square into V. Okay, so sorry, R square. Okay, and we have seen that I am making a mistake here. So this will be R square. Capital V here is 2 by 9 capital R square, and small v here is small r square. Okay, so we have capital V by small v, that will be equal to R square by small r square. So V will be equal to R square by R square into V. So R square will be equal to n raised to 1 by 3 R square upon R square into V. So this will be how much? n2 by 3 R square by R square into V. And V here is, small v here is 10 centimeter per second. So this will be 10 centimeter per second. Here R square get cancelled. So capital V will be 10 n2 by 3 centimeter per second. Hence proved 10 n2 by 3 centimeter per second. Okay, let's move on to the next one. Okay, here we have a sphere which is dropped under gravity through a fluid of viscosity, taking the average acceleration as half of the initial acceleration. Show that the time taken to attain the terminal velocity is independent of the fluid density. So let's take this scenario here. Let's say this is the fluid height and a sphere is dropped here. So when the sphere is dropped, let's say it takes time t to reach here. So let's say it is taking time t to reach here. So this is basically time t taken. Okay, now when the sphere is here, okay, it is being acted upon at the top position A, and let's say it attains terminal velocity at position B. So when you attain terminal velocity, obviously your acceleration has become 0. At this point, the acceleration will become 0. Okay, the acceleration will become 0. And what are the forces acting here? Obviously, what will be the equation here? The viscous force plus the upthrust that will be acting will be equal to the weight of the body. Okay, and that's the reason acceleration will be 0. Here, there will be an acceleration. We have to calculate that. And what are the forces? And if there is an acceleration, there has to be an unbalanced force. So obviously your W and F, W is greater than F. Here you are not, sorry, upthrust. Here you are not, see, the viscous drag will be applicable only when the fluid and when the solid enters the system of the fluid. Here the solid has not completely entered the system. So here it will only be acted upon by the upthrust. And the difference between these two will give the magnitude of the balanced force, unbalanced force. And that unbalanced force is here to give us the acceleration. So first let's calculate this. Initial acceleration. So what are we trying to calculate, people? Initial acceleration. Now initial acceleration will be the resultant force acting on the body. Resultant force acting on the body will be its weight minus the upthrust acting on it. Weight minus upthrust acting on it. Okay, so resultant force F will be equal to, let's say resultant force Fr will be equal to weight minus upthrust. So this will be how much? M into A, acceleration produced, weight, that will be mg, minus upthrust, that is volume, into rho of, sorry, this will be volume of the solid, rho into g, volume of the solid, rho into g. So that's going to be rho into g. This m is basically what? Density into volume. So density of the solid into volume of the solid. So that's going to be how much density of the solid, this g
So let's make some assumptions here, otherwise we'll get confused. Let rho be density of liquid, let sigma be density of solid, okay. So here we have mass of solid will be volume of solid into density of solid into G. This is upthrust, that is volume of solid upon into volume density of liquid into G, and this is basically what MA, that is acceleration. M again here will be volume of solid into density of solid into A. So here A will be equal to Vg minus rho upon V. So what is the acceleration going to be? Acceleration is going to be G density of solid minus density of liquid upon density of solid, minus density of liquid upon density of solid, okay. Now let's calculate this. So now here this is the acceleration at the start. So what will be the average acceleration? The average acceleration is going to be how much? A plus 0 by 2, that is half A, that is going to be half A. A plus 0 by 2, that is going to be half A. That is going to be the average acceleration. Taking the average acceleration as half of the initial acceleration, it's given as well. Now we will have to basically, now here initial velocity is going to be 0. Here the velocity is going to be the terminal velocity. The time elapsed is t. So if we write V is equal to U plus AT, so we can write here V is equal to 0 plus AT, okay. So T will be equal to V by A. Now let's talk about the terminal velocity here. We know terminal velocity is 2 by 9 r square density of solid minus density of liquid into G upon coefficient of viscosity of the liquid upon A. Now A here is average acceleration. So what will be the average acceleration here? A, we have calculated G, this minus this upon this, so this will be 2. So this is the average acceleration A, okay. This is what we have to put down here as G, then we have density of solid minus density of liquid upon twice density of solid. So here we get cancelled, these two get cancelled, we have here the 2 and 2 also gets cancelled, so r square. So this will be the time taken, as you could, sorry, this is how does the 2 get cancelled? 2 goes up and down, this 2 goes up and down, we are left with a 9, okay. So this is the time taken, 2 r square 9, and this comes, okay, this also goes up. I'm so sorry. So basically here the time will be, why is this cut? So this will be going up, so that is 2 density of solid r square upon 9 rho, 2 density of solid r square upon 9 rho, okay. So this is going to be the time taken. Now if you look at it very carefully, okay, we do not have anything show that the time taken to attain the terminal velocity is independent of fluid density. It is basically independent of fluid density. It has got no correlation to rho, which is the fluid density. So this is hence proved, okay. क्लेरम ओके ऑलराइट, चलिए भाई साहब थोड़ा सा थियरी करते हैं हम. सवाल हो गए यहाँ पे. व्हेन अ लिक्विड flows such that each particle of the liquid passing through a given point moves along the same path and has the same velocity as its predecessor, the flow is called streamline flow or steady flow. मतलब कैसा होता है, देखो एक लिक्विड है जो यहाँ से पास कर रहा है, तो लिक्विड का एक पार्टिकल यहाँ से कुछ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड से पास किया, दूसरा पार्टिकल भी उतनी वेलोसिटी से पास कर रहा है, तीसरा पार्टिकल भी उतनी वेलोसिटी से पास कर रहा है, ठीक है. सो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है. When a liquid flows such that each particle of the liquid passing a given point moves along the same path
and has the same velocity as its predecessor, the flow is called streamline flow or steady flow. इसको अपन बोलेंगे streamline flow और steady flow. क्लियर है? ओके जो उसके पूर्वज का स्पीड था उसका भी वही स्पीड है उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से, ठीक है? तो इसको अपन बोलेंगे स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है? ओके, कंसिडर द फ्लो ऑफ अ लिक्विड अलोंग द पाथ ए बी सी. तो ए बी सी में देखो फ्लो हो रहा है एक लिक्विड का, वेयर ए बी एंड सी आर द पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड. इफ एवरी सक्सेसिव पार्टिकल passes through the point A with constant velocity VA directed tangent at A, तो यहाँ पे भाई साहब tangent at A है भाई साहब, ठीक है? Then through point B, ये भाई साहब VB, then through point C VC, along tangent B and then through C with constant velocity VC, the flow is called steady, orderly और streamlined. मतलब क्या है देखो, ये किसी लिक्विड का पाथ है. अभी समझ लो कोई पार्टिकल आया A पे, उसने कितना वेलोसिटी लिया VA, और ये वेलोसिटी कैसी होगी? इफ यू प्लेस अ टेंजेंट इन दैट डायरेक्शन, दिस इज गोइंग टू गिव यू द वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल एट A. कोई दूसरा पार्टिकल आया A पे, उसकी भी सेम वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में. कोई तीसरा पार्टिकल आया, ऐसा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स जब इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, दे आर हैविंग द सेम वेलोसिटी. इसी तरह से भाई साहब इसका भी, इसी तरह से भाई साहब इसका भी. आपके बिल्डिंग्स में जो पाइप हैं, ठीक है, इमेजिन कीजिए, तो पाइप में से पानी जा रहा है भाई साहब, ऐसे हो भाई साहब या ऐसे हो, तो जब ऐसे है तब भी भाई साहब उसी वेलोसिटी से तो जा रही है, वरना तो पाइप भाई साहब ढूंढ ढूंढ करने लगेगा, है ना? अगर एक पार्टिकल आया और वो ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा पार्टिकल आया वो ऐसे वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या होगा भाई साहब? तो अगर पाइप को आप छोड़ देंगे ना तो वैसे ही होगा, ठीक है? क्योंकि वो प्रॉपर्ली फिक्स्ड है, इसीलिए इट इंश्योर्स दैट एवरी पार्टिकल व्हिच पासेस थ्रू दैट पॉइंट एट दैट सेम टाइम अटेन्स द सेम अमाउंट ऑफ वेलोसिटी. और इसी को अपन क्या बोलते हैं? स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है? देखो इसको ऐसे समझो, ठीक है? समझ लो तुम्हारे नल से भाई साहब पानी आ रहा है ना? ये तुम्हारा नल है भाई साहब, ऐसे पानी आ रहा है, ठीक है? क्या पानी को तुमने ऐसे गिरते हुए देखा है? नहीं, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया भाई साहब? इस पॉइंट ए पे या इस पॉइंट बी पे या इस पॉइंट सी पे सारे पार्टिकल सेम वेलोसिटी से ही आ रहे हैं, जितने भी जाएंगे, ठीक है? क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, अगर ऐसा हो रहा हो तो बात गड़बड़ है, ठीक है? सो आपको ऐसा ही दिखेगा. जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कुछ पानी के ड्रॉप्स फेंक दूँ, समझ लो ऐसा एक टेबल है और यहाँ पे कुछ पानी आपने उड़ेल दिया, तो भाई साहब कुछ स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रहेगा, ये उकड़ बकड़ जाएंगे भाई साहब, कहीं भी जाएंगे, ऐसे ऐसे कैसे भी चले जाएंगे, कोई भी पार्टिकल कहीं से भी जा सकता है, ठीक है? तो स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं है. स्ट्रीमलाइन फ्लो मीन्स दैट एवरी पार्टिकल पासिंग टू द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम will be attaining the same velocity, ठीक है? The path ABC along with the particles move one after the other is called streamline. The particle velocity at a particular point remains constant with time, but velocities at different points may vary or may not be the same. Streamline flow is possible only if the liquid velocity does not exceed a limiting value called the critical velocity, ठीक है? अगर liquid velocity जो है एक particular velocity that is critical velocity को exceed नहीं करती है, तभी जाकर आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो पॉसिबल है. अदरवाइज अगर वो एक्सीड कर जाती है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो पॉसिबल नहीं होगा. क्लियर है? ओके. सो द फिक्स्ड पाथ फॉलोड बाय एन ऑर्डरली पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स इन अ स्टेडी फ्लो इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन. तो ये भाई साहब आपका ABC जो है, अ स्ट्रीमलाइन में बी डिफाइंड एज द पाथ द टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड एट दैट पॉइंट. तो एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में जब भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन आपको किसका डायरेक्शन देगा? The flow of the liquid at that point. क्लियर है? समझ में आ रहा भाई साहब? इसको अपन स्ट्रीमलाइन फ्लो बोलेंगे. ओके ओके ओके. ट्यूब ऑफ फ्लो, ठीक है? ट्यूब ऑफ फ्लो, अ बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन इज कॉल्ड अ ट्यूब ऑफ फ्लो. तो ये आपके भाई साहब बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस हैं फॉर्मिंग अ ट्यूबुलर रीजन is called the tube of flow. The boundary of such a tube is always parallel to the velocity of the fluid particles, ठीक है? तो आपके भाई साहब velocity of the fluid particles के ये क्या होंगे? पैरेलल होंगे. No fluid can cross the boundaries of a tube of flow and the flow tube behaves somewhat like a tube. तो ये भाई साहब एक ट्यूब की तरह बिहेव करेगा. ये आए भाई साहब, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं भाई साहब, ठीक है? They are all flowing like this, ठीक है? No fluid can cross the boundaries of the tube flow and the flow tube behaves somewhat like a tube. In a steady flow, the shape of the flow tube does not change with time. Turbulent flow क्या होता है? ठीक है, तो ट्यूब ऑफ फ्लो बोलते हैं इसको अपन. टर्बुलेंट फ्लो मतलब हैप्पैजार्ड फ्लो होती है, ठीक है? When the liquid fluid exceeds a certain limiting value called the critical velocity. अगर आप भाई साहब critical velocity से ज्यादा, ठीक है, the liquid becomes zigzag, फिर zigzag जाएगा. तुमने देखा है जब नल चालू करते हो, ठीक है,
तो बड़े आराम से स्मूथली पानी गिरता है, और जैसे जैसे तुम उसका स्पीड बढ़ाते हो ऐसे गिरने लगेगा, है ना, तभी तुमको छींटे आएंगी इधर उधर। जब तुमने नल को आराम से चालू किया है तब तुमको उतनी छींटे नहीं आएंगी, है ना, आजू बाजू उतनी छींटे नहीं आएंगी, बस अब ऐसे ऐसे सरसराती हुई धार गिरेगी। लेकिन जब तुमने भाई साहब उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है तो भाई साहब छींटे आएंगी इधर उधर। क्यों? क्योंकि अभी आपने क्रिटिकल वेलोसिटी को क्रॉस कर दिया है। द मोमेंट यू क्रॉस क्रिटिकल वेलोसिटी, और यही होता है बाढ़ों में भी, ठीक है। जब गांव खेड़े में बाढ़ आता है, एक नदी जा रही है भाई साहब, नदी अपने एक स्ट्रीमलाइन फ्लो में है, बहुत ज़्यादा पानी बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ जब आता है तो टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा भाई साहब, ठीक है। देन उसका कोई डायरेक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। ओके, तो व्हेन यू एक्सीड द क्रिटिकल वेलोसिटी द लिक्विड फ्लो बिकम्स zigzag, द पाथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड पार्टिकल चेंज कंटिन्यूअसली, हैपोजेटली, और भाई साहब कंटिन्यूअस चेंज होगा, ठीक है। दिस फ्लो इज कॉल्ड एज टर्बुलेंट फ्लो। तो जितनी भी बाढ़ वगैरह आती हैं वो सब टर्बुलेंट फ्लो की वजह से आती हैं। इट इज accompanied by random irregular local circular current called vortices as shown। ये आपके ऐसे लोकल सर्कुलर करंट्स डेवलप हो जाएंगे। जेट स्ट्राइकिंग अ फ्लैट प्लेन, ठीक है, प्लेस परपेंडिकुलर टू इट कॉजेज अ टर्बुलेंट फ्लो। जैसे समझो आपने कभी पाइप से गार्डन में पानी दिया है, जानते तो होंगे, है ना, आपने उसको टैप में लगाया, ये भाई साहब पाइप है, ऐसे भाई साहब आराम से पानी दे रहे हो। पानी को दूर तक पहुंचाना हो तो क्या करोगे? पिचकाओगे उसको, है ना, तो उस से आगे तक जाएगा, है ना, इसको अपन बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। आपने बेसिकली क्या कर दिया है उसको, जैसे आप उसके मोशन को क्या कर रहे हैं भाई साहब, इस तरीके का कर रहे हैं, देखो एक ऑब्स्टेकल लग गया है बीच में, अभी भाई साहब वो चितर बितर होगा, ठीक है, अभी उसकी चितर बितर हो जाएगी, तभी वो स्पीड उसका बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, सो ये आपका, आप बेसिकली जब उसको दबा रहे हैं या उसको पिचका रहे हैं और जब वो दूर तक जा रहा है तो ये जो आप काम कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली यू आर कॉजिंग टर्बुलेंट फ्लो। आपके वाटर स्प्रिंकलर्स में भी यही होता है, जो इरिगेशन में यूज होता है, देखो गांव खेत में ऐसे घूमता रहता है वो और पानी छिड़काता रहता है, तो ये भी उसी पे है, टर्बुलेंट फ्लो पे ही है। टर्बुलेंट फ्लो कहीं पे यूज होता है और कहीं पे हमारे लिए नुकसानदायक भी है। बाढ़ वगैरह में हमारे लिए नुकसानदायक है, लेकिन टर्बुलेंट फ्लो की प्रॉपर्टी को हम इरिगेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो इन अ स्टडी फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। मतलब कैसा है, देखो ये एक लाइन है, देखो एक पानी का स्रोत है, ये स्ट्रीमलाइन ऐसा है, ऐसा जा रहा है, और जब टर्बुलेंट फ्लो होता है तो ये एक लेयर जा रहा है, ये एक लेयर जा रहा है, ऐसे एक ही पॉइंट से दो लेयर जा रहे हैं, ऐसा है, ठीक है। आपने देखा रहेगा जब नल में से पानी गिरता है आपको बहुत बार ऐसे दिखेगा, ठीक है, एक लेयर ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज। सो इन अ स्टेडी फ्लो नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। इफ दे डू सो the fluid particle at the point of intersection will have two different directions of flow. This will destroy the steady nature, ठीक है। The tangent at any point in the streamline gives the direction of velocity. Greater the number of streamlines passing normally through a section of the fluid, larger is the fluid velocity of that section. Fluid velocity remains constant at any point on the streamline, but it may be different at different points in the same streamline, ठीक है। अलग अलग जगहों पे ये अलग अलग होगा। ओके ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। ओके, सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज लेस देन द क्रिटिकल वेलोसिटी द लिक्विड फ्लो स्टेडीली, मतलब आपका स्ट्रीमलाइन मोशन मेंटेन रहेगा। जैसे ही आपका वैसा वेलोसिटी क्रिटिकल वेलोसिटी के ज्यादा हो जाए तो आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, ठीक है। Each layer of the liquid slides over the other layer. It behaves as if different lamina are sliding against each other. तो एक लेयर भाई साहब दूसरे लेयर के ऊपर ऐसे ऐसे जा रहा है भाई साहब, ठीक है। Such a flow is called laminar flow. The surface obtained by joining the heads of the velocity vectors of the particles in a section of the flowing liquid is called the velocity profile. तो अगर देखोगे आप सारे लेयर्स में इन सारों को अगर ज्वाइन करेंगे, जैसे वेव ऑप्टिक्स में आप वेव ड्रॉ करते हो और उसका टेंजेंट को नया वेव फ्रंट मानते हो, वैसे यहाँ पे भी कुछ है।
दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी प्रोफाइल. ठीक है, वेलोसिटी प्रोफाइल फॉर अ नॉन विस्कस लिक्विड. In case of a non-viscous liquid, the velocity of all the particles at any section of a pipe is same, so the velocity profile is plane. Non-viscous liquid ज़्यादा जिसमें भाई साहब viscous force ना हो. ठीक है, flow of non-viscous liquid. Velocity profile of a viscous liquid, when a viscous liquid flows through a pipe. तो अगर एक viscous liquid एक पाइप से flow कर रहा है, ठीक है, the velocity layer at the axis is maximum. तो यहाँ पे जो velocity होती है ये maximum होती है, क्योंकि आपने देखा कि आप जितना भी डीप जाते हैं वेलोसिटी कम हो जाती है, इसी तरह से आप जितना भी पाइप के उस तरफ जाएंगे वेलोसिटी कम हो जाएगी. ठीक है, तो वेलोसिटी इधर भी और इधर भी कम हो जाएगी, बीच में एक्सिस में लैमिनर फ्लो में सबसे ज़्यादा. तो इसीलिए पैराबोलिक वेलोसिटी प्रोफाइल रहेगा अगर विस्कस फ्लूइड रहेगा. तो अगर फ्लूइड में विस्कोसिटी रहेगी तो जब वो पाइप से फ्लो होगी तो उसका पैराबोलिक पाथ रहेगा, क्योंकि आपका जो मेन एक्सिस है उसका वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगा. ठीक है, व्हेन अ विस्कस लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट द एक्सिस इज मैक्सिमम. द वेलोसिटी डिक्रीजेस एज वी गो टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द पाइप and becomes zero for the layer in contact with the pipe. Hence the velocity profile for a viscous liquid is parabolic. तो आपका भाई साहब ये पैराबोलिक प्रोफाइल मिल जाएगा. ठीक है, अगेन देखो इस पूरे चैप्टर में आप सिर्फ और सिर्फ क्या यूज कर रहे हो, डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है, तो आपका जो क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब. ठीक है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड डायमीटर ऑफ द ट्यूब. तो अगर हमने मान लिया कि भाई साहब इन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, सारे पावर्स को अगर हम देखेंगे, सो दिस इज व्हाट वी ऑब्टेन. ठीक है, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के इंटू डी रो डी. ठीक है, इसको जरा प्रूव करने की कोशिश कीजिए. देखो वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू के, critical velocity is equal to k into coefficient of viscosity, k into coefficient of viscosity upon this upon d. चलिए भाई साहब इसको जरा प्रूव करने की कोशिश कीजिए फटाफट. डायमेंशन एनालिसिस है, यहाँ पे आपका k कांस्टेंट है, k is basically a constant, k is constant. ठीक है, this is density of liquid. ठीक है, ये हो गया आपका coefficient of viscosity, d हो गया आपका diameter, this is diameter of the tube, diameter of the tube. समझम. ठीक है, चलिए प्रूव करना है इसको फटाफट. इसको प्रूव करना है मतलब आपको सिर्फ डायमेंशन एनालिसिस से. तो एलएचएस में डायमेंशन क्या हो जाएगा बोलो, एलएचएस में आपका डायमेंशन क्या हो जाएगा, LT-1. इधर आते हैं भाई साहब, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या है, इसको भाई साहब याद रखा है भाई साहब, F इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो ना बोलो, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी A dV by dx. ओके, तो आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितना हो जाएगा बोलो, F dx A dV. ठीक है, F की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, mLT-2, dx की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, L, A की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, L का स्क्वायर. ठीक है, और dV की वैल्यू LT-1. तो यहाँ पे भाई साहब L और ये कैंसिल हो गया भाई साहब. ठीक है, ये एक और L और ये L कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 माइनस -1, तो ये हो गया -1. सो इसका भाई साहब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशनल क्या आ जाएगा, m L⁻⁻1 T⁻⁻1. ये हो गया आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. ठीक है, ओके. सो आपका भाई साहब वेलोसिटी LHS आपका कितना हो गया, वेलोसिटी LHS में आपका आता है कितना, LT-1. और RHS में कितना हो जाएगा बोलो, RHS में हो गया आपका कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी LT-1. RHS में हो गया भाई साहब. अब कांस्टेंट का तो भाई साहब छोड़ दो. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का कितना हो जाएगा बोलो, m L⁻⁻1 T⁻⁻1. तो अपन यहाँ पे क्या मान रहे हैं, लेट VC इज इक्वल टू, ये तो अपना फॉर्मूला है. ठीक है, K कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड रेज टू B एंड डायमीटर ऑफ दिस रेज टू C. ऐसा है, लेट, ये हमने मान लिया लेट. ठीक है,
ओके, तो आपका LHS भाई साहब इतना हो गया। RHS में देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो LHS आपका कितना है भाई साहब, LT-1। RHS में आते हैं यहाँ पे, देखो M L⁻⁻1 T⁻⁻1 रेज टू A। डेंसिटी का कितना होता है भाई साहब, LT⁻³ रेज टू B। और आपका यहाँ पे डायमीटर है, डायमीटर मतलब हो गया आपका L⁻C। तो यहाँ पे हो गया आपका LT⁻⁻1 इज इक्वल टू M⁻A। L⁻, यहाँ पे हो गया -A प्लस B प्लस C T⁻⁻A -3B, ठीक है। क्लियर। सो आपका यहाँ पे A का वैल्यू कितना हो गया, 0। -A प्लस B प्लस C, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1, ठीक है। और यहाँ पे -A -3B का वैल्यू कितना हो गया, -1। दैट इज A प्लस 3B इज इक्वल टू 1, ठीक है। A की वैल्यू अगर 0 है तो 3B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3B इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1/3। क्लियरम। A की वैल्यू हो गई 0। अभी यहाँ पे है आपका -A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 0। तो A की वैल्यू हो गई भाई साहब कितनी, 0। B की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, 1/3 प्लस C इज इक्वल टू 0। तो आपका C का वैल्यू कितना हो गया, -1/3। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। हम C की वैल्यू हो गई -1/3। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन राइट दिस एज VC, ठीक है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू K इंटू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू A। दैट इज कुछ तो गड़बड़ कर दिया भाई साहब हमने, ML-A प्लस B प्लस C। क्या गड़बड़ कर दिया भाई साहब, अरे हाँ यार, यहाँ पे kg पर मीटर क्यूबिक होगा ना, अरे तो यहाँ पे होगा भाई साहब डेंसिटी मतलब हो गया आपका kg पर मीटर क्यूबिक, दैट इज L⁻⁻3B और यहाँ पे L⁻C, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका M⁻0, तो M⁻0 LT-1 दैट विल बी M⁻A प्लस B, है ना। L⁻A -3B प्लस C, ठीक है। T⁻A। तो अगर भाई साहब अभी इक्वेट करते हैं, देयरफॉर A प्लस B इज इक्वल टू 0, -A -3B प्लस C इज इक्वल टू 1, -A इज इक्वल टू -1। तो A की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, पहली बात तो 1, ठीक है। B की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, B की वैल्यू हो जाएगी -A, सो B की वैल्यू हो गई भाई साहब -1, ठीक है। अभी इस पे आते हैं, -1 -3 इंटू -1 प्लस C इज इक्वल टू 1, सो दैट विल बी -1 प्लस 3 प्लस C इज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे हो गया भाई साहब आपका C प्लस 2 इज इक्वल टू 1, C प्लस 2 इज इक्वल टू 1। तो आपका भाई साहब C की वैल्यू कितनी हो गई, -1। क्लियर हम पीपल, ठीक है। तो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी K कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी रेज टू A, दैट इज 1, ठीक है। एंड व्हाट विल्स वी हैव, डेंसिटी रेज टू B। डेंसिटी कितना गया, डेंसिटी B का वैल्यू कितना है, -1, है ना। एंड D रेज टू C दैट इज -1। तो आप क्रिटिकल वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, K कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। दिस विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर तेजू बेटा हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी द क्रिटिकल वेलोसिटी। क्लियर पीपल, ओके। सो क्रिटिकल वेलोसिटी हो गई। क्लियरली द क्रिटिकल वेलोसिटी विल बी लार्ज if coefficient of viscosity is large and this are small. So we can conclude that the flow of liquids of higher viscosity, ठीक है, higher viscosity and lower density through narrow pipes tends to be streamlined. तो अगर किसी लिक्विड का बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी है, ठीक है, और डेंसिटी लोअर है, तो आपका क्रिटिकल वेलोसिटी हाइयर होगी, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी हाइयर होगी तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। जितना ज़्यादा हाइयर क्रिटिकल वेलोसिटी होगा उतना आपका स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा।
क्रिटिकल वेलोसिटी जितना कम होगा उतना टर्बुलेंट फ्लो होगा, ठीक है। ओके, सो द फ्लो ऑफ लिक्विड्स ऑफ हायर विस्कोसिटी, ठीक है, and lower density through narrow pipes tends to be streamlined. The flow of liquids of lower viscosity and higher density through broad pipes tends to become turbulent. ठीक है, अगर lower viscosity होगी, ठीक है, lower viscosity and higher density मतलब क्या हो जाएगा, आपका critical velocity कम हो जाएगा, तो broad pipes tends to become turbulent because in that case critical velocity will be small. आपका critical velocity भाई साहब कम हो जाएगा, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी कम होता है तो बहुत आसानी से क्रिटिकल वेलोसिटी आप क्रॉस कर जाएंगे, और जैसे ही आप क्रिटिकल वेलोसिटी क्रॉस करते हैं आपका टर्बुलेंट फ्लो हो जाएगा, इट विल रिजल्ट इन अ टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। कौन कथकली कर रहा है तब से? ओके, रेनॉल्ड्स नंबर, व्हाट इज रेनॉल्ड्स नंबर पीपल? It is a dimensionless parameter whose value decides the nature of flow of a liquid through a pipe. It is given as Reynolds number is rho into V into D upon coefficient of viscosity. ठीक है, where rho is the density of the liquid, ठीक है, V is the velocity of the liquid, coefficient of viscosity of the liquid and D is the diameter of the pipe. ठीक है, तो आपका भाई साहब रेनॉल्ड्स नंबर क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड्स नंबर इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू डी बाई कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर, इफ रेनॉल्ड्स नंबर लाइज बिटवीन, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? रेनॉल्ड्स नंबर, यहाँ पे रो हो गया डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, V is basically what? V is the velocity of the liquid, D is the diameter of the pipe and this is the coefficient of viscosity. अभी हम जब पाइप्स बनाते हैं, ठीक है, बड़े बड़े पाइप्स जब बनाते हैं आप, उसमें से पाइपलाइंस में से आप ज़्यादा करके पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, ऑयल ट्रांसपोर्ट होता है, नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी चीज़ें जाती हैं, ठीक है। सो हमको ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी. अगर रेनॉल्ड्स नंबर लाइज बिटवीन 0 and 2000 द लिक्विड फ्लो इज स्ट्रीमलाइंड, ठीक है, और लैमिनर. If it is more than 3000, ठीक है, the liquid flow is turbulent. If R lies between 2000 to 3000, the flow is unstable. It may change from laminar to turbulent and vice versa. समझ में आ रहा है भाई साहब? तो रेनॉल्ड्स नंबर है, इसका रेंज है 0 to 2000 स्ट्रीमलाइन रहेगा, 2 से 3000 में स्ट्रीमलाइन भी हो सकता है, टर्बुलेंट भी हो सकता है, तो चेंजिंग होती रहेगी, और बियॉन्ड 3000 आपका टर्बुलेंट ही रहेगा, ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड क्रिटिकल. Thus, the exact value at which turbulence sets in a fluid is called critical Reynolds number. तो जिस वैल्यू पे आपका टर्बुलेंसी चालू हो जाता है उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर. दिस इज नोन एज द क्रिटिकल रेनॉल्ड्स नंबर. Physical significance of Reynolds number. Consider a narrow tube having a cross-sectional area A. Suppose a fluid flows through it with a velocity V for a time interval delta t. ठीक है, तो आपने भाई साहब एक नैरो ट्यूब लिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भाई साहब है A, और ए फ्लूइड फ्लोज थ्रू इट विद अ वेलोसिटी V, ठीक है, फॉर अ टाइम इंटरवल डेल्टा t, ठीक है. लेंथ ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना भाई साहब. लेंथ मतलब ये वाला लेंथ, ठीक है, ये वाला लेंथ. तो लेंथ ऑफ द फ्लूइड विल बी इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग टू द ट्यूब इन टाइम t, ये कितना हो जाएगा? वॉल्यूम विल बी लेंथ इनटू एरिया इनटू टाइम, है कि नहीं भाई साहब? ठीक है. सो आपका वॉल्यूम विल बी भाई साहब, तो लेंथ ऑफ द फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम. वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड टू द ट्यूब इन डेल्टा टी, ये कितना हो जाएगा भाई साहब? A इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ठीक है. मास ऑफ द फ्लूइड कितना हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, दैट इज A इंटू वी इंटू डेल्टा टी इंटू रो, है ना भाई साहब. दिस इज वॉल्यूम ना भाई साहब, ये आपका V इंटू डेल्टा टी, दिस इज द लेंथ. एरिया इंटू लेंथ आपको क्या दे देगा? वॉल्यूम. और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आपको क्या दे देगा? मास, ठीक है. सो दैट विल बी द मास. तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ और व्हाट इज द मास ऑफ द फ्लूइड फ्लोइंग इन डेल्टा टी टाइम? दैट इज आपका हो जाएगा भाई साहब ए वी डेल्टा टी इंटू रो, ठीक है. इनर्शियल फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया. अभी फोर्स क्या होता है? देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, ठीक है, एम वी माइनस एम यू बाई टी होता है, ठीक है. सो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन ए. मोमेंटम का चेंज यहाँ पे देखो किस वजह से हो रहा है? फोर्स जो होता है, ठीक है, वो मोमेंटम के चेंज पे होता है. फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब क्या होगा? बोलो, एम वी मतलब आपका डेल्टा एम वी अपॉन टी, ये होगा ना, है ना. अभी ध्यान दो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा? एम डेल्टा वी अपॉन टी प्लस
v डेल्टा m अपॉन t। भाई साहब समझो समझो इस चीज को, फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू dm बाई dt, समझम समझम समझम, dm बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन t, या आप अगर इससे कंफर्टेबल नहीं है तो इससे लेते हैं हम, ठीक है, dp बाई dt, ठीक है, ये p मतलब हो गया आपका चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी मोमेंटम क्या होता है भाई साहब, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, सो वी कैन से dmv बाई dt, समझे कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आप भाई साहब u v फंक्शन है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt, है कि नहीं, क्लियर है, ये हो जाएगा फोर्स। अभी जब आपका कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, जब आपका भाई साहब कोई फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो इसमें आपका बोलो क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि यहां पे आपका dv बाई dt चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, आपका जो चेंज हो रहा है वो मास चेंज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पे हमने क्या कैलकुलेट किया है, मास डेल्टा m, मतलब कितना मास वहां से फ्लो हो रहा है, डेल्टा m इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जिसकी वैल्यू अपन ने क्या निकाली, एरिया वेलोसिटी इनटू रो, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम कौन सा फैक्टर ले लेंगे भाई साहब, ये वाला नहीं होगा हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, एक लिक्विड गया इधर से, दूसरा लिक्विड गया, सबकी वेलोसिटी सेम ही है ना, देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी, बट देयर इज अ चेंज इन मास फ्लोइंग, तो मास भाई साहब आपका कंटिन्यूसली जा रहा है, सो दिस इज द रेट ऑफ मास दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। तो आपका फोर्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, v dm बाई dt, और dm की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, dm की वैल्यू कितनी निकाले हैं भाई साहब आपने, dm की वैल्यू अभी आपने देखा डेल्टा m इज इक्वल टू एरिया जो कांस्टेंट है, ठीक है, डेल्टा v इंटू डेल्टा t, v इंटू डेल्टा t, ये है आपका भाई साहब, ठीक है। सो दिस विल बी a v वेलोसिटी dt बाई dt, ठीक है, तो इतना आ जाएगा देखो यहाँ पे, तो आपका कितना आ गया भाई साहब, यहाँ पे आ गया, तो दिस विल बी व्हाट a, ये समझ में आ रहा है, ये वेलोसिटी है, dm मतलब कितना हो गया a v dt, और ये है भाई साहब आपका dt, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो कितना आ गया बोलो, a v का स्क्वायर, ठीक है, a v का स्क्वायर, सो दिस v स्क्वायर, अच्छा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, चलिए पहले तो हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, तो आपका फोर्स कितना हो गया भाई साहब आपका a v का स्क्वायर, यहाँ पे लेकिन यार डेंसिटी कहाँ से आ गया, अरे हाँ डेंसिटी का फैक्टर भी तो था ना भाई साहब, अरे dm मतलब हो गया आपका इनटू डेंसिटी, है ना, इनटू डेंसिटी, तो ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है, ये हो गया आपका फोर्स, ठीक है। अभी फोर्स पर यूनिट एरिया कितना हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होगा आपका a v स्क्वायर रो अपॉन a, सो दैट विल गिव यू हाउ मच, फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इज v स्क्वायर रो, मतलब ये प्रेशर ही हो गया ना, फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर है, ओके ओके ओके। सो विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द फ्लूइड, अपने देखा है विस्कस फोर्स कितना होता है, एन ए पर यूनिट एरिया, विस्कस फोर्स कितना होता है, विस्कस फोर्स होता है आपका एन ए डी वी बाई डी एक्स, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया कितना होगा, विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया ये कितना होता है, एन डी वी बाई डी एक्स होता है, समझम समझम समझम, ठीक है। सो दिस इज बेसिकली व्हाट, एन इंटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, दैट इज एन वी बाई डी, है कि नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, और आपका हो गया v अपॉन dx, कितना है dx मतलब आपका डायमीटर ही हो गया ना यहाँ पे, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस दैट इज कवर्ड, ओके, तो आपका हो गया भाई साहब, तो इनिशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया आपका कितना है, आपका रो v स्क्वायर अभी हमने निकाला, ठीक है, अपॉन दिस बाई d, तो आपका ये आ जाएगा रेनॉल्ड्स नंबर, दिस इज हाउ वी विल गेट द रेनॉल्ड्स नंबर, ये देता है आपको रेनॉल्ड्स नंबर। तो रेनॉल्ड्स नंबर जब हमने कैलकुलेशन किया है वो एक्चुअली क्या है, इनिशियल फोर्स पर यूनिट एरिया अपॉन विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, इन दोनों का रेशियो है, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, ये वाला वैल्यू आ जाएगा भाई साहब, ठीक है, दिस इज रो वी डी अपॉन, दस रेनॉल्ड्स नंबर रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ द इनर्शियल फोर्स पर यूनिट एरिया टू द विस्कस फोर्स पर यूनिट एरिया, क्लियर, ओके ओके ओके। सो फॉर अ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, डेंसिटी, तो इसका भाई साहब रेनॉल्ड्स नंबर कितना हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर विल बी इक्वल टू रो वी डी अपॉन, ठीक है, फ्लोइंग थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर दिस विल बी द रेनॉल्ड्स नंबर। लैमिनर फ्लो आर ई बिटवीन 0 to 2000 होता है, इसके बीच में 2000 से 3000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो 2000 बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी, द फ्लूइड वेलोसिटी कॉरेस्पॉन्डिंग टू रेनॉल्ड्स नंबर 2000 इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी।
तो वी सी की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी 2000 इंटू दिस अपॉन रो इंटू डी. फ्लो इज टर्बुलेंट फॉर आर ई अबव 3000. फ्लो इज अनस्टेबल फॉर आर ई बिटवीन 2000 टू 3000. क्लियर है क्लियर है क्लियर है पीपल. ओके ओके ओके. चलो भाई साहब इसको करना है, एकदम हलवा सा सवाल है. वेरीफाई दैट द क्वांटिटी रेनॉल्ड्स नंबर इज डायमेंशनलेस. तो आपका ये रेनॉल्ड्स नंबर है जो क्या होता है रो वी डी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. रो मतलब हो गया आपका क्या केजी पर मीटर क्यूबिक, तो एम एल रेस टू -3. वी मतलब हो गया आपका एल टी -1. डायमीटर हो गया आपका एल. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कितनी निकाली थी वैल्यू एम एल रेस टू -1 टी रेस टू -1. ये कैंसिल भाई साहब. ठीक है, एल रेस टू माइनस टी रेस टू -1 टी रेस टू -1. यहाँ पे ऊपर कितना हो जाएगा बोलो -3 है, यहाँ पे 2 है ना, 2 3 -3 प्लस 2 कितना हो जाएगा -1 और नीचे कितना है -1. तो भाई साहब आपका यहाँ पे आ गया m रेस टू 0 l रेस टू 0 t रेस टू 0. देयरफॉर रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी. Dimensionless quantity. Clear people? Reynolds number is basically a dimensionless quantity. Okay, okay, okay. चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक.
what should be the average velocity of water in a tube of radius 0.05 मीटर so that the flow is just turbulent. ठीक है, तो आपने देखा भाई साहब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू क्या है, बोलो भाई साहब, रो वी डी कौन सा, कैपिटल डी डायमीटर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. चलिए भाई साहब, और टर्बुलेंट कब हो जाती है भाई साहब, जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू कितनी हो जाए 3000. ठीक है, व्हाट शुड बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ वाटर इन अ ट्यूब रेडियस सो दैट द वेलोसिटी इज जस्ट टर्बुलेंट. जस्ट टर्बुलेंट मतलब यहाँ पे 3000 की वैल्यू अज्यूम कर रहा है ये. ठीक है, वाटर की वेलोसिटी भाई साहब यहाँ पे आपका भाई साहब 1000 kg पर मीटर क्यूबिक हो गई. वेलोसिटी आपको निकालना है इनटू डी, डायमीटर इज हाउ मच 0.005 और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये एसआई यूनिट में ही दिया हुआ है आपको. ठीक है, 0.001. ठीक है, ये भाई साहब हो गया आपका 5, तो यहाँ पे हो गया आपका v का वैल्यू 3000 बाई 5000. ठीक है, कैंसिलम 5, तो ये हो गया v, क्या बोल रहे हो, अरे हाँ यार रेडियस, तो डायमीटर लेना पड़ेगा ना, इंटू 2 कर देंगे और क्या, इंटू 2 कर देंगे है ना, डायमीटर मतलब इंटू 2. ठीक है, ओके, तो आपका यहाँ पे कितना हो गया, 5 2 10 हो गया भाई साहब यहाँ पे, तो अच्छी बात है, 5 2 10, तो मतलब यहाँ पे हो गया 0.3 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, दिस विल बी द वेलोसिटी. क्लियर पीपलम, 0.3 मीटर पर सेकेंड, दैट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड. ओके ओके ओके, चलो भाई साहब ये वाला सवाल देख लेते हैं. द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर इज 0.48 लीटर पर मिनट. ठीक है, ये आपका फ्लो ऑफ वाटर है. द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर इज 10⁻³ पास्कल सेकेंड. ठीक है, इस लीटर को आपको बेसिकली मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई होप एवरीबडी नोज 1 लीटर इज इक्वल टू 1 मीटर क्यूबिक is equal to 10⁻³ liters. ठीक है, the coefficient of viscosity of water is this much. After some time the flow rate is increased to 3 liters per minute. Characterize the flow for both the flow rates. ठीक है, तो आपको यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है कितना है 1.25 सेंटीमीटर, दैट इज 1.25 इंटू 10⁻² मीटर्स. ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज हाउ मच 10⁻³ पास्कल सेकेंड, और आपका डेंसिटी कितना हो गया 10 क्यूब kg पर मीटर क्यूबिक. द वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज हाउ मच, यहाँ पे भाई साहब वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट पर सेकेंड इज वेलोसिटी इनटू एरिया, है ना, वेलोसिटी इनटू एरिया. क्या ही समझ में आ रहा है भाई साहब, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्लो रेट ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप ऑफ डायमीटर इज दिस मच. तो कितना वॉल्यूम भाई साहब बाहर निकल रहा होगा, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वेलोसिटी. वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, लेंथ, लेंथ इनटू एरिया अगर आप करोगे पर यूनिट टाइम, है ना, यही पूछा है ना, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर सेकेंड, तो ये हो गया लेंथ. ठीक है, और एरिया, एरिया कितना हो जाएगा बोलो, पाई इंटू r² बाई r/2 का स्क्वायर, r/2 मतलब d/4 हो गया, है ना. पाई यहाँ पे एरिया मतलब क्या हो जाएगा, पाई r² मतलब पाई d/2 का स्क्वायर मतलब पाई d²/4. ठीक है, स्पीड ऑफ फ्लो भाई साहब कितना हो गया, v इज इक्वल टू 4q पाई d². रेनॉल्ड्स नंबर कितना होता है दिस, तो आप यहाँ पे भाई साहब देख लो, रो इंटू डी अपॉन दिस. इसको अगर हम अलग करें 4q बाई पाई d² लिख सकते हैं. देखो